اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جو دلائل پیش کرتے ہیں اسی والا سے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آگے ان دلائل کا بھی جوابات دیں گے جو یہ دھوکہ دیتے ہیں، جہاں پر یہ فراڈ کرتے ہیں، جہاں پر یہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مفہوم بدلتے ہیں، اور جہاں کہیں دال آٹا بنتا ہو وہاں پر یہ ترجمہ بھی تبدیل کرتے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ جو یہودیہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، سعودیہ کی طرف سے جو مال ملتا ہے اس کو حلال کیا جائے، اور جو نبی علیہ السلام کی امت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے مشرک ثابت کیا جائے، اور پھر ان کو مشرک ثابت کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی یہ امت مشرک ثابت ہو گئی تو پھر عیسائی، یہودی یہ بات کہہ سکیں گے کہ دیکھو جی اگر ہم ختم ہو گئے تم بھی تو ہو ہی گئے ہو، ہم رہے راستے پھنسے گا، تم بھی پھنسے گا، تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ تو پھر کیا ہوگا کہ نئے نبی کی ضرورت پڑے گی، نئے نبی کی ضرورت پڑے گی جو آ کر دوبارہ بتائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ختم نبوت پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جناب والا امت کو نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں، امت کو صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، امت کو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں، امت کو اولیاء سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہی ہے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک یہودی کا کلپ پڑا ہے، اس میں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلے، مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے کچھ بندے یعنی یہودیوں کے فالتو ہوں اور وہ اس طرح کے ہوں کہ قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہو وہ آگے کچھ بیان کرے، حدیث کچھ کہہ رہی ہو وہ آگے کچھ بیان کرے، وہ اس کا مطلب بدلیں، اس کا مفہوم بدلیں۔ جب وہ سارا کچھ بدل دیں گے تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہم ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد کہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پر سرے کے فتوے لگا دیتے ہیں اور وہی ان کا نظریہ تو مر گیا مربوط نہ پاتے نہ دور، تو وہ مردوں والی بتوں والی وہ کچھ نہ کچھ آیت کہیں بھی کہیں فٹ کر کر بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج اس کی عنوان پر چند دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مولا ہے مومنوں کا، وجبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام مومنوں کے جو ہیں اور مددگار ہیں، وصالح المؤمنین اور مومنین بھی نیک مددگار ہے نبی پاک علیہ السلام کے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 4 ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر یہ جو سعودی عرب سے نجد سے چھپا ہوا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے اندر اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، کہتے ہیں یعنی نبی کے مقابلے میں تم جتھ بندی جتنی بھی کر لو تم نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نبی کے مقابلے میں جتنا بھی زور لگا لو تم نبی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مددگار اللہ بھی ہے، مومنین بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر اس نے خود تسلیم کر لیا ہے تو مومنین مددگار ہیں۔ تو جب ان کی کتاب سے یہ ثابت ہو گیا کہ مومنین مددگار ہیں تو پھر یہ تفسیر ابن کثیر اس کے اندر یہ جو آخر میں الفاظ ہیں وصالح المؤمنین، اس میں 3 اقوال ہیں جو امام ابن کثیر دمشقی نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا صالح المؤمنین، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا وزاد الحسن البصری، جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آگے بات پڑھائی اور کہا وہ عثمان کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پھر آگے
एक कौन नकल किया, वो सालिहुल मुमिनीन क़ाल अली इब्न अबी तालिब। तो यहाँ पर जो सालिहुल मुमिनीन है, यहाँ पर मुराद हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो एक इबारत से यह साबित हो गया कि मोमिनीन मददगार है, और तफसीर इब्न कसीर से यह साबित हो गया कि वो सालिहुल मुमिनीन से मुराद है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और बाकी 3 सहाबा यानी 4 यार मुराद है सालिहुल मुमिनीन से। फिर आगे बात आती है मददगार में साबित हो गया, मोमिनीन मददगार है ये भी साबित हो गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सालिहुल मुमिनीन से मुराद है ये भी साबित हो गया। तो फिर आगे एक बात आती है निदा की, मोमिनीन है मददगार है तो क्या पुकार सकते हैं या नहीं। तो ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इस वक्त इसका नाम है हदियतुल महदी, लिखने वाला है नवाब सिद्दीक अफर खान मौलवी बैतुल, ये लिखने वाला है। इसने इसी चैप्टर पर गुफ्तगू की है दुआ का शरई माना। फसल दुआ शरई जैसा कि नमाज, ये तो गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। दुआ शरई ये गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, क्योंकि दुआ शरई ये इबादत है, और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है। और दुआ लुग़वी निदा के मानों में है, तो यह मुतलकन गैरुल्लाह के लिए भी जायज है कि अगर निदा यानी आप इबादत के तौर पर अगर निदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो होगा शिरक, और अगर आप वैसे पुकार रहे हैं तो फिर इस पर शिरक नहीं होगा, ये गैरुल्लाह के लिए भी जायज है। ये बात मौलवी बैतुल ने की है। फिर आगे सिर्फ यही नहीं कि बात की है, तो आगे ये भी लिखा है कि मुतलकन गैरुल्लाह के लिए जायज है, ख्वाह वो जिंदा हो या मुर्दा हो। जिंदा को भी पुकार सकते हैं, मुर्दा को भी पुकार सकते हैं। फिर आगे इस पर दलील दी क्या, या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, यानी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने परवरदिगार की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, यानी आपके वसीले से मैं अल्लाह तबारक तआला की तरफ जाता हूँ। तो ये बात वहीदुल ज़मान ने हदीसुल महदी के अंदर लिखी है। 3 बातें हमारी साबित हो गई, मोमिनीन मददगार हैं ये भी साबित हो गया, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सालिहुल मुमिनीन से मुराद है ये भी साबित हो गया, और जिंदा और मुर्दा को भी पुकार सकते हैं ये भी साबित हो गया। और इसी किताब के अंदर ये बात भी मौजूद है कि ये जो मदर का ताल्लुक है ना, मदर का, तो कहता है ये खुद कहता है कि जिंदा और मुर्दा बराबर हैं, जिंदा को भी ताकत अल्लाह ही देता है और मुर्दे को भी ताकत अल्लाह ही देता है। तो ये जो जिंदा मुर्दा ताहतल अस्बाब फौकल अस्बाब ये टोटली जहलाना गुफ्तगू है, ये भी बात इसमें मौजूद है। तो फिर आगे रहती है चौथी बात। चौथी बात क्या है, 3 हो गई, निदा भी कर सकते हैं, मददगार भी हैं, सालिहुल मोमिनीन है, मौला अली हैं। तो फिर आगे बात रही क्या वो हमारी पुकार सुनते भी हैं कि नहीं, हम जो उनको पुकार रहे हैं वो सुनते भी हैं या नहीं। तो इसके हवाले से तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर की 11वीं जिल्द सफ़ा 95 इस पे क्या लिखते हैं, फाइदा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला समअल्लाहु सामिया सामिल करीब वल बईद, वो जो है ना कि अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली को तकलीफ देगा, मेरे वली से दुश्मनी रखेगा, मेरा उससे लाने जंग है। इस हदीस पाक को नकल करते हुए इसके तहत ये बात लिखी है, फाइदा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला समअल्लाहु सामियन करीब वल बईद, कि जब अल्लाह तबारक तआला का नूर वो बंदे के कानों में आ जाता है तो फिर चाहे करीब हो चाहे बईद हो वो सुन लेता है, चाहे करीब हो या बईद हो वो सुन लेता है। फिर आगे फरमाया वइदा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला बसरन, तो जब अल्लाह तबारक तआला का नूर जलाल जब बंदे की आंख बन जाता है, फिर क्या रअल करीब वल बईद, कि फिर वो बंदा करीब से भी देख लेता है दूर से भी देख लेता है, करीब से भी देख लेता है दूर से भी देख लेता है। फिर आगे फरमाया वइदा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यदन,
तो फिर अगर अल्लाह तबारक तआला का जो नूर जलाल है वो बंदे का हाथ बन जाए, फिर क्या होता है, कादर अला तसर्रुफ फी सुअब वल सहल वल बैद वल करीब, क्या कि अल्लाह तबारक तआला के जब वो नूर बंदे का हाथ बन जाता है तो अल्लाह तबारक तआला से तसर्रुफ की कुदरत दे देता है, चाहे फिर वो मुश्किल में हो या आसानी में हो, चाहे करीब हो या बैद हो। तो इस तहत तसर्रुफ में जिक्र हो गया कि वो आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और फिर वो दूर से सुन भी सकते हैं, वो दूर से देख भी सकते हैं, और वो जनाबे वाला दूर से मदद के लिए आ भी सकते हैं। तो ये चार हवाला जात मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। तो ये एक इनकी तरफ से वहाबियों जो बंदे की तरफ से धोखा है, और इंशाल्लाह तबारक तआला ये जो दलाइल पेश करते हैं इसी वाला से ये गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते, इंशाल्लाह तबारक तआला हमें आगे उन दलाइल का भी जवाब देंगे जो ये धोखा देते हैं, जहाँ पर ये फ्रॉड करते हैं, जहाँ पर ये कुरान को बदलने की कोशिश करते हैं, उसका मफहूम बदलते हैं, और जहाँ कहीं दाल आटा बनता हो वहां पर ये तर्जुमा भी तब्दील करते हैं, और ये हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि जो यहूदियों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, सऊदीया की तरफ से जो माल मिलता है उसको हलाल किया जाए, और जो नबी अस्सलाम की उम्मत है इसको किसी न किसी तरीके मुशरिक साबित किया जाए। और फिर इनको मुशरिक साबित करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर नबी अस्सलाम की ये उम्मत मुशरिक साबित हो गई तो फिर ईसाई यहूदी ये बात कह सकेंगे कि देखो जी अगर हम खत्म हो गए तुम भी तो हो ही गए हो, हम रहे रास्ते भटक, तुम भी भटक गए, तुम में और हम में फर्क क्या रहा। तो फिर क्या होगा कि नए नबी की जरूरत पड़ेगी, नए नबी की जरूरत पड़ेगी जो आकर दोबारा बताएगा। तो इस लिहाज से ये खत्म नबूवत पर भी हमला करना चाहते हैं, ये जनाबे वाला उम्मत को नबी से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को सहाबा से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को औलिया से दूर करना चाहते हैं। इसलिए यही है कुरान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे पास एक यहूदी का क्लिप पड़ा है, उसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर फितना फैले, मुसलमान आपस में टूट जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि हमारे कुछ बंदे यानी यहूदियों के पालतू हो और वो इस तरह के हो कि कुरान की आयत कुछ कह रही हो वो आगे कुछ बयान करे, हदीस कुछ कह रही हो वो आगे कुछ बयान करे, वो उसका मतलब बदले, उसका मफहूम बदले। जब वो सारा कुछ बदल देंगे तो फिर इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो ये यहूदियों की साजिश है जिस पर ये अमल करते हुए उम्मत मुस्लिमा पर शिरक का फतवे लगाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जब तक सांस है, जिंदगी है, सांस चल रही है, इंशाअल्लाह तबारक तआला इनके हर फितने का, इनकी हर शैतानी का, चाहे वो रवाफिज की तरफ से हो, चाहे वो ख्वारिजी की तरफ से हो, चाहे वो वहाबियों देवबंदियों शिय्इयों की तरफ से भी वो फितना हो, इंशाअल्लाह तबारक तआला हम उसका भरपूर ताक़ुब करेंगे और आखिरी दम तक हम हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा और उम्मत तौहीद साबित करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक तआला इनके हम छोटे उतारते रहेंगे, और इनके जो ये कुरान के अंदर तब्दीलियां करते रहते हैं, इंशाअल्लाह हम इनका भरपूर ताक़ुब करेंगे और इस उम्मत के ईमान की हिफाजत करेंगे। दुआ अल्लाह तबारक तआला आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे इसी नजरिए पर, इसी अकीदे पर अल्लाह तबारक तआला मौत अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।